So guys, let's start. Yes. So that day we finished equation of continuity, right? So the equation of continuity for a fluid flow, right? We discussed whenever a fluid flows through a cross section of through a variable cross section. Let's say this is area A1. Here the velocity is V1. Here area is A2. Velocity is V2. So what did we derive? A1 V1 is equal to A2 V2, and this would be A3 V3 and so on. Okay, let's wait for some time. यार ये बाहर क्या बज रहा है? ओके गाइस, राइट. सो ये हमने उस दिन पढ़ा था. दैट मीन्स इफ जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी. दिस a इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, जिसका नाम होता है रेट ऑफ फ्लो. ये भी अपने को याद होना चाहिए. दिस इज रेट ऑफ फ्लो, राइट. सो द प्लेसेस वेयर एरिया इज मोर, वेलोसिटी वुड बी रादर लेस, एंड वाइस वर्सा, राइट. फिर द सेकेंड थिंग वी स्टार्टेड वॉज बर्नौलीज इक्वेशन, राइट. तो ये मैंने आप लोगों को व्यू दे दिया था कि ऑफ द सम ऑफ ऑल दीज थ्री हेड्स, sum of all these three heads when a fluid flows, right, sum of rho gh plus pressure plus half rho v square, it remains constant, right. This is the, this is potential head, this is called the pressure head, and this is called the velocity head. अब now इसको प्रूफ करना है हमको. प्रूफ के लिए हम लोग कुछ assumptions लेंगे. It's a steady flow, streamline flow, जो से बात की थी पहले. स्टेडी फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो. इट्स इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. फ्लूइड कैन नॉट बी compressed. It's a non-viscous fluid. There is no friction between the layers of fluid, right? And the flow is totally irrotational. There is no rotation whatsoever. It's only translation of fluid. Considering these three things, we'll come through the proof of this. This proof, if this chapter is in your syllabus for school exam, and then definitely it's gonna come. Right, sometimes they remove this entire portion, then this is meaningless. This proof is just a manifestation of energy conservation. तो ये आपको learn करने की ज़रूरत नहीं है unless until you are hitting your school exams and it is coming. Otherwise, there is no purpose to mug up this derivation. Let's understand this. क्या consider कर रहे हैं? We are considering fluid flowing in this tube. You can understand that purposefully this tube has been made with a varying cross section and varying height because we want to prove something, right? So fluid is flowing like this. I have taken a cross section of the fluid
क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड इज ए बी, ठीक है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, ए बी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, राइट. देयर विल बी फ्लूइड बिफोर दिस, देयर विल बी फ्लूइड आफ्टर दिस, ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूअस फ्लो. बट एक स्नैपशॉट ले रहे हैं, एक स्नैपशॉट लेते टाइम वी आर फोकसिंग ऑन दिस सेक्शन ए बी, ठीक है. अभी ऑन दिस इस ए के जो लेफ्ट साइड में फ्लूइड है, राइट, you can very easily imagine this would be putting pressure on a P1 on the fluid this side, right side of B. This would be rather trying to squeeze B like this. This is P2 and this is P1. ठीक है. The area of cross section at section A is A1. Area of cross section at section B is A2. ठीक है. Okay. तो ये वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर. विल इमेजिन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, जिसमें ये ए पॉइंट पे जो फ्लूइड है वो कहाँ पे आ गया है, इट हैज कम टू ए डैश, एंड एट द सेम टाइम बी हैज गॉन टू बी डैश. ओके, सब तो वही चीज लिखी हुई. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वी हैव कंसीडर्ड रो, सिंस इट इज इनकम्प्रेसिबल सो डेंसिटी विल रिमेन सेम. तो सब जगह डेंसिटी रो लिया है. मास ऑफ लिक्विड इन, अब ये जरा इस लिक्विड का इमेजिनेशन करो, ए से ए डैश जो यहाँ से यहाँ पे आया है, इसका अगर मैं मास निकालने की कोशिश करूँ, मास होता है वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी. तो वॉल्यूम A1 एरिया V1 इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है. सो इन डेल्टा टी टाइम the length of this A dash, do you guys agree this will be V1 into delta t? It is going with velocity V1, so in delta t time this point A will come to A dash, so this length will be V1 into delta t, velocity into time. So area into length, this is the volume of this part A dash. आ रही बात समझ में? उस वॉल्यूम से मैंने डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तब got the mass. Similarly, mass of liquid in BB dash, this will be same thing, A2 V2 delta T into rho, right? अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, तो इसका मतलब A1 V1 is equal to A2 V2. So A1 V1 and A2 V2 are equal. सब जगह जब A1 V1 और A2 V2 अगर इक्वल है, so in that case these quantities are equal. This delta T is common, rho is common, A1 V1 and A2 V2 is equal. So इसका मतलब mass of liquid here is same as mass of liquid here. Actually होना भी चाहिए था ना, क्योंकि conservation of mass है. जितना ये पुश हुआ, जितना लिक्विड यहाँ से यहाँ पुश हुआ, यहाँ से उतना लिक्विड पुश आउट भी तो होगा, अदरवाइज तो ट्यूब एक्सपैंड कर जाएगी, राइट. तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मास सेम है. खैर हमने प्रूव भी कर दिया. ओके, अब आप देखो हम करेंगे क्या. बर्नौली प्रूफ करने का तरीका क्या है कि इस फ्लूइड पे जितना भी वर्क हुआ है, जो वर्क डन हैज ऑन दिस फ्लूइड, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम जो आप ऑलरेडी जानते हो. व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना फाइंड आउट द वर्क डन ऑन दिस फ्लूइड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एंड देन वी आर गोना इक्वेट इट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो देखो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, ठीक है. दोनों का वर्क डन निकालते हैं. यहाँ का डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स की वजह से हुआ है? ये लिक्विड जो आगे गया है वो क्यों आगे गया? क्योंकि पीछे से किसी ने पुश किया है, राइट. जो पीछे से फ्लूइड था उसने प्रेशर से पुश किया है. तो इसका मतलब वर्क किसने किया है? जो इस साइड का फ्लूइड है उसने वर्क किया है इसके ऊपर. ये फोर्स कितना होगा? P1 इंटू A1, प्रेशर इंटू एरिया P1 इंटू A1. डिस्प्लेसमेंट कितना है? V1 इंटू डेल्टा टी. डिस्प्लेसमेंट तो वही है यार, V1 इंटू डेल्टा टी. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? P1 A1 इज माई फोर्स, P1 A1 इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट V1 डेल्टा टी. डू यू गाइस एग्री? और ये जो चीज है A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो, इसको हम डेल्टा M बोल रहे हैं, मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है. तो A1 V1 डेल्टा टी को मैं डेल्टा M बाय रो लिख सकता हूं. तो मैंने A1 V1 डेल्टा टी को मैंने डेल्टा M बाय रो लिख दिया, P1 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया. तो P1 इंटू डेल्टा M बाय रो, इट इज अ वर्क डन ऑन दिस फ्लूइड फ्रॉम दिस प्रेशर, ठीक है. इधर देखो
इधर लिक्विड इधर डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स, पहले तो ये फोर्स कैसा लग रहा है, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, सो ये नेगेटिव होगा, माइनस P2A2 इज द फोर्स, P2A2 इज द फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, V2 इंटू डेल्टा टी, V2 इंटू डेल्टा टी, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिवर्स, तो इसलिए माइनस है। अगेन A2 V2 डेल्टा टी को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा m बाई रो, तो ये आएगा माइनस P2 अपॉन डेल्टा m बाई रो, दिस इज द वर्क डन ऑन पार्ट BB डैश। तो हमने ये वाला वर्क डन निकाल लिया, ये वाला वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि सर ये बीच में जो लिक्विड इसका आपने क्यों कंसिडर किया, देखो यार बीच में जो लिक्विड है ये पूरा का पूरा एक इंटरनल सिस्टम है, so when I am trying to find out the work done on a system, I would rather consider the external forces ना, जो आपस में जो उनका वर्क डन है वो फ्लूइड में कंसिडर करूंगा। तो एक दो इस साइड के फ्लूइड ने जो धक्का दिया वो, और इधर ने जो धक्का दिया वो, उनको कंसिडर किया मैंने। अंदर का जो फ्लूइड है वो तो एक सिस्टम है, तो उसका वर्क डन मैंने कहीं कंसिडर नहीं किया। अच्छा, दूसरा कौन सा फोर्स है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखो आप, ये डेल्टा m जो यहाँ पे था अब इस हाइट पे आ गया है, इमेजिन करो डेल्टा m मान लो सेंटर पे मैंने कंसंट्रेट किया तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इज माई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वुड बी m इंटू जी, तो डेल्टा m इंटू जी, बिकॉज आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस पार्ट, सो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन वुड बी डेल्टा m इंटू जी, H2 माइनस H1, बट डू यू गाइस एग्री ये माइनस में होगा यार, फोर्स ग्रेविटेशन का नीचे लग रहा है, राइट, ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है, ठीक है। अगेन इफ आई वांट टू पुश दिस माइनस साइन इनसाइड, सो आई कैन राइट दिस एज डेल्टा m into g, rather H1 minus H2, just pushing the minus sign inside, just playing with the maths. So total work done, first this, second this, and third one is this, ऐड कर दिया, दिस इज द टोटल वर्क डन। इस टोटल वर्क डन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस टोटल वर्क डन, तो यही लिखा हुआ पूरा, ये पूरा जस्ट कॉपीड हियर। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी हियर इज वाज v2 and this is v1, so do you guys agree this will be half m v2 square minus v1 square, right guys, half m v2 square minus v1 square, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बाकी जो बचा है सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। डेल्टा m is everywhere, so got rid of that, so this guy becomes p1 upon rho, ठीक है, एंड दिस गाय बिकम्स माइनस P2 अपॉन रो, तो माइनस P2 अपॉन रो को मैंने उस साइड भेज दिया, ठीक है, तो प्लस P2 अपॉन रो हो गया। सो ये दोनों सॉर्टेड है, राइट। इधर क्या है, GH1 प्लस का GH1 ये लिखा हुआ है, माइनस का GH2 है, मैंने उसको उधर भेज दिया तो प्लस का GH2 है, राइट। माइनस का हाफ V1 स्क्वायर था इधर, उसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस का हाफ V1 स्क्वायर हो गया, और वो हाफ V2 स्क्वायर प्लस का उधर ही है, तो ये आ गया जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग एंड ट्रांसफरिंग वेरिएबल्स हियर एंड देयर। Now what I am intending to do, I am just trying to collate all the V1s here and all the V2s there, all the P1s here, P2s there, and the H1s here, H2s there. So ये अरेंज कर लिया मैंने, it's arranged nicely now, right? क्या बोल रहा है ये, इस पूरे क्वेश्चन को रो से मल्टीप्लाई और कर लो, right? We don't want fractions, रो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so this will become P1 रो G H1 half रो V square P2 half. This is what we were intending to prove. Between these two cross sections, right, this thing is constant. अब ये point यहाँ ना लेके मैं यहाँ भी ले सकता था, what difference it would have made to the derivation, right? This point यहाँ ना हो कि यहाँ होता, यहाँ बीच में कहीं होता, इसका मतलब throughout this flow, this sum of these three things is constant, ठीक है। This is Bernoulli equation, और इस पे बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट्स टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं डियर, नॉट टू बी मिस्ड, नॉट टू बी। अगर ये बर्नौली के क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो
तो मतलब आपको सिर्फ इतना करने को भी दिक्कत हो रही है यार। दो तो क्या करेंगे वो, एक क्रॉस सेक्शन में मतलब इन चीज़ों को दे देंगे इसमें से, और एक कोई चीज़ पूछ लेंगे। आपको करना क्या होगा कि मुझे मालूम है कि ये प्लस ये कांस्टेंट रहना है, तो ये प्लस ये दिया हुआ है। ऑन द सेकेंड हैंड मान लो उन्होंने V2 दे दिया है और उन्होंने प्रेशर पूछ लिया है, तो लेकिन आपको प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर, तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें आते हैं। लेकिन इसको समझना ज़रा ज़रूरी है। ये तो इसकी मैथ्स हो गई, न्यूमेरिकल्स उसके मैथ्स के ऊपर आते हैं, लेकिन इसका समझना ज़रा ज़रूरी है कि मतलब जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन में, whenever there is a fluid flowing in a cross section, pressure will come at the cost of velocity if the fluid is horizontal. अगर एक horizontal section में fluid flow कर रहा है, pressure increase will come at the cost of decrease in velocity, और velocity increase will come at the cost of lower pressure. मतलब if let's say there is a, कोई भी फ्लूइड ले लो आप, कोई भी फ्लूइड, ठीक है, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। हियर द प्रेशर इज P1, हियर द प्रेशर इज P2। लेट्स से इट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, मतलब वो हाइट का वेरिएशन हम थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू अंडरस्टैंड वन फिनोमेना, राइट। तो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब H1 H2 एंड ऑल दैट सब जगह कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आई हैव रिमूव्ड हाइट बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल, तो H1 H2 हर जगह सेम होने वाला। दैट मीन्स इफ प्रेशर इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस, वाइस वर्सा इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। गाइज इसी कॉन्सेप्ट पे आप आराम से चैन से बैठ के फ्लाइट में उड़ जाते हो। आपको क्या लगता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो उसको कौन उठाता है? कोई बाहुबली आके उठाता है उसको? नहीं ना। कैसे उठ जाता है अपने आप को? कैसे उठ जाता है? दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स कि वो कैसे एयरलिफ्ट करता है। अगर आपने नोटिस किया, इफ यू आर वन ऑफ द क्यूरियस सोल्स, तो आपने नोटिस किया होगा एयरक्राफ्ट के विंग्स थोड़े से ऐसे स्लोपी होते हैं, ऐसा विंग्स थोड़ा सा ऐसे होते हैं, स्लोप डाउनवर्ड्स, राइट। वो किसी पर्पस से किया जाता है। व्हेन एयरक्राफ्ट अटेन्स अ सर्टेन स्पीड, राइट, एक मिनिमम स्पीड जब अटेन करता है तो होता है क्या है कि यहाँ की जो विंड है, इसके सराउंडिंग विंड, इट कम्स बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन, इट कम्स इनटू द रिवर्स फ्लो। आप ऐसे जा रहे हो तो विंड आपको सामने से लगती है, राइट। तो इसके ऊपर की विंड फ्लो करती है ऐसे, इसके नीचे की विंड फ्लो करती है ऐसे। सो देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ विंड व्हिच सेट्स अप अक्रॉस द विंग, ठीक है। अब क्या होगा, बिकॉज दिस इज स्लोपी, राइट, ये हायर साइड फ्लूइड फिनोमिना है कि व्हेन यू हैव अ स्लोप लाइक दिस, और इसको आप थोड़ा सा इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा विंड का क्लटरिंग ज्यादा होगा फ्लो का, तो हायर साइड ऑफ विंग गेट्स अ हायर स्पीड। यहाँ पे जो एयर का फ्लो होगा हायर स्पीड पे होता है, विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, एंड ये थोड़ा सा स्लो हो जाती है, स्लोअर स्पीड। सो एक रिलेटिव स्पीड सेटअप हो जाती है हायर साइड ऑफ विंग बिटवीन लोअर साइड ऑफ विंग। तो अब सोचो, यहां पे अगर आप बर्नौली लगाओगे, यहां पे प्रेशर है P1, यहां पे प्रेशर है P2, इट इज अ फ्लूइड फ्लो, राइट, ठीक है। यू इग्नोर दिस, ये हाइट डिफरेंस एक एयर के मास के लिए रो जी एच इज नेग्लिजिबल, ये हाइट और ये हाइट का डिफरेंस। What we are saying, let's say ये velocity is V1, this velocity is V2. P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Now, if V1 is more than V2, that means we can say P1 has to be lesser than P2. Otherwise, how will this balance? V1 ज्यादा है तो P1 को कम होना पड़ेगा, तो बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। प्रेशर यहां पे कम हो गया, यहां पे ज्यादा हो गया, दिस गिव्स अ अपलिफ्ट टू द एयरक्राफ्ट, एंड इट डज नॉट हैपन एट अ लोअर स्पीड। द फ्लाइट टेक्स ऑफ, द पायलट हैज टू गो टू अ सर्टेन स्पीड, देन ओनली टेक्स ऑफ, राइट।
तो उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस जो है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इनफ होना चाहिए. ये p1 माइनस p2 हैज टू अपलिफ्ट द कंप्लीट एयरक्राफ्ट. तो जितना उसका 500 या मतलब 1000 kgs या 2000 kgs या 3000 kgs जितना भी उसका लोड है लगेज के साथ पूरा का पूरा वो उसको लिफ्ट करना है. इसका मतलब द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी हैज टू बी सफिशिएंट इनफ, अदरवाइज इट विल नॉट टेक ऑफ. ठीक है, ये एक चीज आप एक बहुत छोटे एक्सपेरिमेंट से खुद भी कर सकते हो. अभी कोई मुझे एक स्ट्रिप पेपर की फाड़ के दे सकता है? रफ I'll get it. एक मिनट लिए वो फैन बंद कर दो, माइट डिस्टर्ब दिस. इफ आई कीप दिस नियर टू माई माउथ, ठीक है, इफ आई ब्लो एयर ऑन टॉप ऑफ दिस guy will lift up. If I blow air here with a speed, this guy will lift up. Can you see this? It is very counterintuitive. You might feel like it's gonna go down, right? When I'm putting the pivot, it happens exactly the opposite. Because in a blowing air, what happens? The air above this gets into higher velocity. Higher velocity comes at the cost of lower pressure. इसका मतलब ऊपर का प्रेशर लो हो गया, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो it lifts up. Very similar happens in a aircraft at a higher level. ठीक है? So ऑफ कोर्स यार इसके पीछे पूरी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है. दिस इज बेसिक लेवल है, फंडामेंटल है, बट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस टू दिस, राइट? देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एयर का टर्बुलेंस एंड ऑल दैट. वो सब इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए एक रिक्वायर्ड डिजाइन क्रिएट करते हैं एयरक्राफ्ट का, ताकि व्हाटएवर बी द कंडीशंस यू कैन टेक ऑफ एंड लैंड सेफली. राइट, इट्स अ वेरी हाई एंड इंजीनियरिंग. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक बार एरोस्पेस इंजीनियरिंग सारे आईआईटीज में है भी नहीं. आईआईटी कानपुर में है, आईआईटी मुंबई में भी है शायद, आई थिंक, बाकी मुझे याद नहीं कहाँ कहाँ है. हाँ चला, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज अ वेरी हाई एंड इंजीनियरिंग. दुनिया में आपको शायद पता है सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं. सिर्फ 2 कंपनीज, यू नो दैट, बोइंग एंड सेकेंड वन इज एयरबस. बोइंग एंड एयरबस. हाँ, इंडिगो इज नहीं, बोइंग भी रहता है, राइट? तो वो तो मतलब दे आर स्ट्रेट मोनोपोली. किसी की औकात ही नहीं है कि स्पेस में आके वेंचर कर लो. हम वो करते हैं जो किसी टॉम डिक एंड हैरी की लेवल से ऊपर है. इट्स अ वेरी हाई एंड इंजीनियरिंग. एक बार ऑल इंडिया रैंक 1, आईआईटी में भी वो हिस्ट्री है, ऑल इंडिया रैंक 1 साउथ इंडियन था वो, ऑल इंडिया रैंक 1, ही ओपेंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर. वरना एरोस्पेस इंजीनियरिंग खुलती है जाके कुछ 800-900 रैंक के आसपास. जब कंप्यूटर साइंस बंद हो जाती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब बंद हो जाती है, तब एरोस्पेस खुलती है. और एरोस्पेस चलती है करीबन 1400-1500 रैंक तक ऑल इंडिया. उस साल उसने ओपन किया था बिकॉज ही हैड अ ड्रीम to get into the designing of aircrafts and that to fighter. ये तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल पैसेंजर है, ठीक है? तो बहुत ही प्यारी इंजीनियरिंग का डोमेन है. द ओनली थिंग इज कि these jobs are not well regarded or rewarded in the beginning of the years. क्योंकि टफ काम है ना, टफ काम कोई नहीं करना चाहता. सब कंप्यूटर सामने बैठ के कोड लिखना चाहते हैं और इजी मनी चाहते हैं. इट्स ह्यूमन नेचर, देयर इज नथिंग रॉन्ग आल्सो, ठीक है? नहीं हमको बनना है साइंटिस्ट, लेकिन जो लोग करते हैं फिर वो अलग डोमेन के लोग होते हैं. सो व्हेनेवर यू फ्लाई यू कैन थैंक टू दीज गाइस कि दे आर गिविंग यू दिस. बियॉन्ड मनी, इफ दे डोंट डू इट, हाउएवर रिच यू आर, यू विल हैव टू टेक अ ट्रैवल व्हिच इज वेरी पेनफुल, राइट? सो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है. आपने परफ्यूम स्प्रे आप लोग यूज करते हो,
राइट। परफ्यूम स्प्रे पे क्या करते हो आप, बड़े आराम से उसको ऊपर से प्रेस करते हो और इट गेट्स स्प्रेड विद अ हायर वेलोसिटी, राइट। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, वो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ एक चैम्बर रहता है जिसमें लिक्विड रहता है जो आपको स्प्रे करना है, यहाँ से एक ट्यूब कनेक्टेड रहती है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे आपके पास एक पिस्टन रहता है जिसको आप एक हैंडल से प्रेस कर सकते हो, ऐसा ऊपर से आप प्रेस करते हो, ठीक है। ये आपके चैम्बर है जिसमें लिक्विड रखा हुआ, आपका काम है इस लिक्विड को स्प्रे करना है मुझे बाहर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको ऊपर से प्रेशराइज करते हो, दबाते हो, ये दबता है तो क्या करेगा, ये इसको मूव करता है, पिस्टन मूव होता है, पिस्टन मूव होते ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे आके इंक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ की जो एयर है उसके पास ज्यादा एरिया है मूव करने के लिए, यहाँ की जो एयर है उसके पास कम एरिया है, सो A1 V1 A2 V2 करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। यहाँ का प्रेशर कम होता है तो लिक्विड चढ़ जाता है ऊपर प्रेशर डिफरेंस करने के लिए और स्प्रे हो जाता है स्पीड से। भाई यहाँ पे प्रेशर, अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हुई तो क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, उस प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए लिक्विड राइजेस अप एंड देन द लिक्विड गेट्स स्प्रेड, राइट। सेम बर्नौली का एक्सप्रेशन एप्लीकेशन है, हायर वेलोसिटी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ लोअर प्रेशर, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में इस पे काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैंने 2 एग्जांपल कराए हैं। कोई लोग क्रिकेट खेलते हो तो आपको उनके स्पिनर्स कैन एक्चुअली स्विंग द बॉल इन द एयर, इवन सीमर्स आल्सो कैन डू दैट, सो उसमें भी बर्नौली एप्लीकेशन है। हार्ट अटैक, नॉट वेरी डिजायरेबल कंडीशन टू हैव, हार्ट अटैक का भी एक्सप्लेनेशन फिजिक्स वाइज बर्नौली ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, सेम ही है जो मैंने एयरक्राफ्ट का बताया ऐसे ही है, बट पढ़ना अच्छा लगेगा आपको, राइट। फिजिक्स पुट इनटू प्रैक्टिस। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास सिर्फ यही एक चीज है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका एप्लीकेशन हमें सीखना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वील डू कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो हम लोग आते हैं पेज नंबर 400 पे, पेज नंबर 400 पे गाइस आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी दिस। ग्लिसरीन है, उसका डेंसिटी अपने को दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density given glycerin. Glycerin is a liquid, right? Through a conical section of pipe, जो बनाया हुआ है डायग्राम, conical section है ना, frustum है basically, it's not a complete cone, it's a frustum of cone. The radii of its ends are 0.1 and 0.0 meter. ये 2 radii जो हैं, they are given to us. This is R1 which is 0.1 and this is rather R2 which is 0.04 meter. ठीक है, एंड ठीक है, तो हमको रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट ऑफ फ्लो मैंने उसने बताया था आपको, A into V. This guy is called रेट ऑफ फ्लो। वो आप चाहे यहां पे निकालो चाहे आप यहां पे निकालो, कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा पूछा है कि इन दोनों सेक्शन में यहाँ प्रेशर P1 है या P2 है, सो वी हैव टू फाइंड आउट P1 माइनस P2, प्रेशर डिफरेंस भी, अच्छा प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है 10।
10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, V1 या V2 में कुछ दिया हुआ है? ठीक है, नहीं दिया हुआ। ठीक, चलो गाइस देखते हैं इसको क्या करना है। सिर्फ रेट ऑफ फ्लो के लिए हमको एरिया वेलोसिटी चाहिए, राइट? एरिया तो अपने कंट्रोल में है, यहां पे भी पता है, यहां पे भी पता है, बट द थिंग इज दे हैव नॉट गिवन अस वेलोसिटी हियर और हियर, दोनों ही अपने लिए क्वेश्चन मार्क है, राइट? तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए हमारे पास एरिया तो है बट वेलोसिटी नहीं है, बट दे हैव गिवन अस समथिंग एल्स, दे हैव गिवन अस समथिंग एल्स, सो वी विल यूज दिस समथिंग एल्स। पहली चीज तो आप हमेशा यूज करोगे, वो यूज करोगे A1 V1 is equal to A2 V2. This is always the case, rate of flow, right? Equation of continuity ये आप हमेशा अप्लाई करोगे जब भी आप इस सिचुएशन में होगे। A1 V1 is equal to A2 V2. तो यहां से A1 हम लिख रहे हैं पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर टाइम्स V1 स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू A2 क्या है 0.04 का स्क्वायर पाई इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू V2, राइट गाइस? A1 V1 A2 V2 किया मैंने, इससे V1 और V2 में एक रिलेशन वी गेट वन रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, सो दिस विल बी 0.01 V1 इज इक्वल टू 0.0016 V2. Do you guys agree? Right? So this will be यहाँ पे कितना है? This is this. So this has to be multiplied by. Okay, so this is 100. This is 1000. So 2 zeros, 2 zeros. Okay. No, sorry. 1 2 3 4 4. So 100. Okay. So this is 100 V1 is equal to 16 V2. So यहाँ से we will get V1 upon V2 is equal to 16 by 100, 4 by 25. So V1 by V2 we have got by just using A1 V1 is equal to A2 V2. Now we need to utilize this as well. This is a horizontal flow, right? So इस केस में हम क्या लगाएंगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, मतलब यहां का। अभी आप अप्लाइंग बर्नौली बिटवीन दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस A एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट B. वी आर अप्लाइंग बर्नौली बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो यहां पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, मैंने GH1 नहीं लिया बिकॉज दिस इज अदर अ हॉरिजॉन्टल पाइप, मतलब ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो जो H1 यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया हमने। ये हुआ P2, यहाँ पे कुछ P2 प्लस हाफ रो यहाँ की वेलोसिटी, ठीक है। नाउ दे हैव गिवन यू P1 माइनस P2, तो P1 और P2 एक तरफ ले लो आप, टेक P1 माइनस P2 एक तरफ बिकॉज दे हैव गिवन यू प्रेशर डिफरेंस इज दिस, सो P1 माइनस P2 इधर ले लिया गाइस, सिर्फ सॉल्विंग हो रही है, कुछ नहीं उससे ज्यादा, और ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट? इसको लिख देंगे हम 10, दिस विल बी हाफ रो। नाउ इसका रोल आ गया अपने पास 1.25 10 to the power 3, और दिस विल बी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से कैन आई रब दिस पार्ट ना, तो डेंसिटी लिखी हुई सिर्फ, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले आप V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, गेट एवरीथिंग दिस नोन थिंग हिज, इसको जो भी है इसको यहां पे लाके जस्ट फाइंड आउट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर वुड बी 2 into 10, देखो 2 into 10 अपॉन 1.25 into 10 to the power 3। तो यहाँ से आप 10 से ये स्क्वायर कर दो तो ये 125 हो जाएगा, तो रादर दिस विल बी 2 by 120, 2 by 120, ठीक है। अब
वी हैव टू वेरिएबल्स राइट। तो अभी इसमें से कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम ये कर लेते हैं, एक स्मार्ट देखो तरीका क्या है करने का। यहाँ पे स्क्वायर में इक्वेशन है, आई हैव v1 by v2 हियर, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू स्क्वायर ऑफ दिस गाय, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। इसको मैं लिख लूँ 16 by 625। नाउ यहां से आई कैन फाइंड आउट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 by 625 v2 स्क्वायर, राइट गाइस। और दिस आई कैन प्लग इन डायरेक्टली हियर। इंस्टेड ऑफ v1 स्क्वायर आई कैन राइट दिस, सो दिस विल बी रादर v2 स्क्वायर माइनस 16 by 625। थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, सॉरी अबाउट दैट, बट दिस इज v2 स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज 2 by 125, वो एज इट इज है। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या जाएगा, 625 v2 स्क्वायर माइनस 16। तो 625 माइनस 16 कितना होगा इस 609। तो ये हो गया, गंदा नंबर आ गया, 609 v2 स्क्वायर अपॉन 625, इसको मैं हटा रहा हूँ, अपॉन 625 इज इक्वल टू 2 by 125। सो ये तो हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल, 125 5 × 625 राइट। तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ गया 609 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 5 और 10, हाँ सॉरी दिस इज 10। तो यहाँ से v2 स्क्वायर अप आ जाएगा 10 अपॉन 609। सो v2 को इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और वो आ जाएगा, वैल्यू क्या आई है v2 की, इन्होंने v1 निकाला है एक्चुअली, एंड v1 इनका आया है 0.0205। गाइज ये वॉटेवर आप इसको आप निकाल लेना, ठीक है। नॉर्मली हमारे कैलकुलेशंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह कैलकुलेशन आते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से v2 आ गया एक बार, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जस्ट इसका स्क्वायर रूट, दिस इज वेरी बैड स्क्वायर रूट। और इसके बाद रेट ऑफ फ्लो, जो हमको पूछा गया था रेट ऑफ फ्लो, this will be nothing but we will take a2 v2 right, because we have taken v2, just multiply this with the area, you will find the rate of flow, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बिल्कुल मत जाओ आप, इतना गंदा कैलकुलेशन जनरली नहीं होता एग्जाम में। आप ये देखो कि हमने किया क्या है, हमने दो चीजें करी हैं। पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई थी, with the equation of continuity we could manage one equation between v1 and v2, and with Bernoulli we got the second equation, that's it. The calculation part would be rather easy in your actual questions, ठीक है। ओके, तो अभी इसके थोड़े से और एप्लीकेशंस हमें देखने हैं, उस पर जाते हैं। एक डिवाइस होती है डियर वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, वो हमें समझना है। वेंचुरी मीटर, इट्स व्हाट इज वेंचुरी मीटर, ये आपके सिलेबस में है डियर। व्हाट इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है, बेसिकली ऐसा हॉरिजॉन्टल ट्यूब से रहता है, ठीक है। इसका यू विल नोटिस दैट इट हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शन एंड देन नैरो पोर्शन एंड देन अनदर ब्रॉड क्रॉस सेक्शन, एंड इट इज ओपन फ्रॉम बोथ दी साइड्स, राइट। तो कभी भी क्या होता है ना, जैसे मान लो अभी पीसीएमसी है फॉर एग्जाम्पल, पीसीएमसी वाटर सप्लाई करता है एक प्रेशर पे, एंड दिस वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वन प्लेस। ऐसा तो नहीं उनके घर, आपके घर के बगल में उन्होंने सप्लाई का टैंक लगा रखा है, ठीक है। सो व्हेन दे सप्लाई फ्रॉम अ टैंक, हो सकता है कि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ कचरा या कुछ भी हो सकता है ना,
और आपके घर पे अचानक प्रेशर ना आए, तो अभी वहां वाटर टैंक से आपके घर तक कहीं इशू है, हाउ वुड दे फिगर आउट? अभी पाइप में कोई अंदर तो जाएगा नहीं कि कहां पे प्रॉब्लम है. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फाइंड कि वेयर देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस और कहां पे वेलोसिटी का फ्लो कम ज्यादा हो रहा है. पहले उस जगह को स्पॉट करते हैं कि यहां तक वेलोसिटी ठीक है, यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब इन दोनों प्लेस के बीच में कहीं प्रॉब्लम है. तो लेट्स नैरो डाउन द प्रॉब्लम एरिया फर्स्ट, राइट? सी एवरी टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व्स विद अ थॉट ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशन, राइट? अभी आपके घर का इंटरनेट चला जाएगा तो क्या देखो, पहले अपना लोकल सेटअप चेक करोगे. इफ इट डजंट, राउटर रिस्टार्ट करोगे, ये देखोगे वो देखोगे, जितना आप अपने एंड पे कर सकते हो. लगेगा लोकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब देयर कुड बी सम कनेक्टिविटी इशू. देन यू विल कॉल अप द हेल्प डेस्क, वो आके देखेगा कि कहां से इशू है. So something similar has to happen when there is a problem in a fluid flow. तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर यूज करते हैं. तो इस तरीके का डिवाइस होता है. इसमें हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को इन द फ्लो वी इंसर्ट, मतलब जिस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है उसको जहां पे भी उसकी पॉसिबल ओपनिंग है उसको खोला और ये वेंचुरीमीटर को लगा दिया, तो ये वाटर जो इट विल फ्लो थ्रू दिस वेंचुरीमीटर लाइक दिस. इसमें एक लिक्विड भरा होता है ऐसा, हाई डेंसिटी लिक्विड, राइट? ये इस ट्यूब का लिक्विड होता है. इफ देर इज अ प्रेशर डिफरेंस, राइट, द हाइट ऑफ दिस फ्लूइड एडजस्ट. वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टेबल होने देते हैं, और ये स्टेबल होने के बाद जो रीडिंग होती है डिफरेंस ऑफ द हाइट्स दैट दे मेजर, मींस दीज ट्यूब्स आर कैलिब्रेटेड. सेंटीमीटर में दे आर कैलिब्रेटेड, सो यू कैन मेजर व्हाट इज दिस पॉइंट and what is the lower point and you can measure this difference of height. ये करने के बाद वो कुछ मैथ्स करते हैं, वो जो मैथ्स करते हैं वो बर्नौली इक्वेशन है, वो हम समझने वाले हैं. ठीक है, ओके? सो सेटअप समझ में आ गया कि दिस विल बी इंसर्टेड इन अ फ्लोइंग फ्लूइड जस्ट टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, कि रेट ऑफ फ्लो कहां पे कम ज्यादा हो रहा है वो मेजर करने के लिए हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं उस जगह पे. ठीक, अब देखो ये हम इसमें दो पॉइंट लेंगे, एक ब्रॉड क्रॉस सेक्शन पर और एक नैरो क्रॉस सेक्शन. एक ब्रॉड का और एक नैरो का, दो पॉइंट इस पे बर्नौली हम फोकस करके लगाएंगे बर्नौली. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब मान रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ट्यूब मान रहे हैं तो देयर इज नो हाइट का लफड़ा, रो जी H1 वाला कंपोनेंट हम उड़ा देंगे, विल नॉट कंसिडर. तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है. द एरिया इज A1 हियर, एरिया इज A2 हियर, वेलोसिटी इज V1 हियर, वेलोसिटी इज V2 हियर. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टफ एकदम. अब देखो बर्नौली अब लगाओगे तो क्या लिखोगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P1 plus half rho V1 square will be equal to P2 plus half rho V2 square. तो स्टैंडर्ड है यार, यहाँ पे प्रेशर P1 है, P2 है, A1 A2 V1 V2. ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, P1 माइनस P2, P1 माइनस, इन वे जो हमने भी न्यूमेरिकल में किया, P1 माइनस P2 दिस विल बी इक्वल टू रादर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. यहाँ से P1 माइनस P2 को मैं लिख सकता हूँ हाफ रो V1 स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, do you guys agree this will become this V2 square upon V1 square minus 1 if I take V1 square common. देखो आप लोग इस इक्वेशन से अगर मैं V1 square common ले, you'll get this, right? Now we also have equation of continuity that can be applied. So we know one more relation between V1 and V2. A1 V1 is equal to A2 V2. तो यहां से क्या आ जाएगा, V2 by V1 is equal to A1 by A2. This is from 1. V2 by V1 is equal to A1 by A2. स्क्वायर कर लो इसका, V2 square by V1 square is A1 square by A2 square. So here V2 square by V1 square we will replace with A1 square by A2 square. And when you do it with minus 1, do you guys agree you will get A1 square minus A2 square upon A2 square. A1 square upon A2 square minus 1, right? So A2 आपने लिया LCM, A1 square minus A2 square, right? This is half rho V1 square which is already there. So यहाँ से इस जगह तक हम पहुंच गए. P1 minus P2 is this thing. ठीक है, now अभी जो ट्यूब लगाई है इसका क्या काम है, ये ट्यूब किसने लगाई थी, क्योंकि हमको राइट्स, हमको मालूम था कि हमको इस P1 माइनस P2 की जरूरत पड़ेगी. We knew when we apply this Bernoulli equation, right, we will be having this equation
एंड उस न्यूमेरिकल में तो आपको उन्होंने वो डायरेक्टली दे दिया कि द प्रेशर डिफरेंस इज दिस, बट एक्चुअल सिनेरियो में हु विल टेल यू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फ्लोइंग लाइक दिस, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट? उसके लिए हमने ये रखा हुआ. डू यू गाइज अग्री कि ये लिक्विड भले ही फ्लो कर रहा हो, बट हियर जो लिक्विड है ये हाइड्रोस्टैटिक है, ये पहले ऊपर नीचे होगा, अग्रीड, बट जब थोड़ी देर बाद आपको छोड़ोगे तो ये लिक्विड एक लेवल अचीव करके दोनों साइड पे फिर ये शांत हो जाएगा. सो दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक. सो अभी हाइड्रोस्टैटिक में क्या लगाते हैं? प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच. यहां पर जरा प्रेशर देखो, ये जो P1 है, इज इट रिप्रेजेंटिंग, बिकॉज दिस P1 इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट. ठीक है, मतलब ये ट्यूब जो लगाई गई है ना हमने, दिस इज मोर क्लोजर टू दिस एंड, इज मोर क्लोजर टू द ब्रॉडर पार्ट, एंड ये वाला जो इसका जो ओपनिंग है ट्यूब का, वो एकदम नैरो पार्ट पे होता है. तो अभी देखो, यहां पे प्रेशर हुआ P1, यहां पे प्रेशर हुआ P2. अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लूं, इस पॉइंट पे, तो प्रेशर सेम आना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक के केस में. तो क्या होगा? P1 इज इक्वल टू, यहां कोई लिक्विड नहीं, तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच. इस पॉइंट का प्रेशर गाइस, देयर इज नो लिक्विड अबव इट, सो इट इज जस्ट P1. डू यू गाइस अग्री? दिस प्रेशर इज जस्ट P1, द प्रेशर गिवन बाय दिस लिक्विड P1. इस पॉइंट पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या है? P2 यहां तक का प्लस रो जी एच. नाउ रो कौन सा? इस डेंसिटी का लिक्विड, इस लिक्विड का डेंसिटी. ठीक है, सो P1 माइनस P2 वुड बी H इंटू रो एम इंटू जी. सो ये जो बंदा ये कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसके पास ये कैलिब्रेटेड स्केल है, उसने ये दोनों मेजर कर लिए, ये कौन सी रीडिंग है, ये कौन सी रीडिंग है, ये H मिल गया. ये H मिलते ही उसने P1 माइनस P2 फिगर आउट कर लिया. Once you figure out P1 minus P2, which is this, you anyways waiting for this guy to settle down, equate it to this. So you equated this to your velocity equation. So यहाँ से H into rho m into G became equal to this. यहाँ से you can find out V1. अब देखो V2, there is no V2 here, there is no variable, everything is known. So V1 can be written with this वेरी अगली फॉर्मूला, जिसको हमें कभी याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर डेराइव करने के लिए आया तभी आपको इसको डेराइव करना, अदरवाइज यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. इज जस्ट एन एक्सप्रेशन गाइज. यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ रो एम, रो A2, A1, H, everything will be known. So what you would rather do in numericals, in Venturimeter, what you would rather do, अगर आप डम स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ फॉर्मूला याद करने का मन करता है तो आप ये करेंगे. अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप उस अपने 2 साल की डेटाबेस की मेमोरी अपने माइंड की उसमें वेस्ट नहीं करेंगे. आप 2 बार 2 इक्वेशन लगाएंगे, एक बार ये इक्वेशन लिखेंगे, राइट, उससे आपको P1 माइनस P2 मिलेगा. P1 माइनस P2 को आप H रो m इंटू जी करेंगे, तो एक वैल्यू होगी जो आपको पता होगी, और ये समथिंग, ये सब नोन चीजें होंगी, वो सिर्फ V1 आपको अननोन देगा, तो आप यहां से V1 निकाल लोगे. रिमेंबरिंग दिस इज अ नाइटमेयर, बट स्टिल इफ यू वांट टू मेमोराइज दिस, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, यू कैन मेमोराइज दिस. ठीक है, सो यहां से आपको वेलोसिटी मिल गई which you were intending to find, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटेंड हमारा नेचुरल वेलोसिटी ये होना चाहिए था V1, बट इस जगह पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कम हो रही है. तो इसका मतलब इसके पहले ही प्रॉब्लम है, एंड दे आइडेंटिफाई द फ्लो इश्यू बिकॉज दे नो कि हमने टैंक से इस प्रेशर पे वाटर रिलीज किया है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो रीडिंग उनके पास होगी. एंड व्हेन दे कैलकुलेट दिस, इफ इट इज नॉट मैचिंग राइट टूवर्ड्स, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब कि यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, वरना वो आगे बढ़ते जाएंगे. जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी स्टार्टिंग पॉइंट से, वो आगे बढ़ते जाते हैं. जैसे ही उनको जिस जगह वेलोसिटी मिलती है गड़बड़, अच्छा लास्ट टाइम मैंने वहां पे रीडिंग लिया था, यहाँ पे रीडिंग लिया, यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉप दिख रहा है, इसका मतलब बिटवीन दिस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड दिस सेक्शन ऑफ पाइप देयर इज सम ब्लॉकेज, देयर इज सम वेलोसिटी ड्रॉप. दिस इज हाउ दे आइडेंटिफाई, और अदरवाइज व्हाट डू यू थिंक, how would they identify a problem in a flow?
ओके, ये एक एग्जांपल दिया है, बहुत जगह यूज होता है। कई कई जो शिप्स होते हैं, शिप्स में ऑयल टैंक अलग जगह रहता है, इंजन अलग जगह होता है। सो ऑयल टैंक से एक प्रेशर पे इंजन को लिक्विड सप्लाई होता है, तो उसमें भी होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, रैट मैनेज या कुछ गड़बड़ हो गया तो उसकी वजह से फ्लो में प्रॉब्लम आ गई, तो भी वो वेंचुरीमीटर को यूज करके ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस इज अ डिवाइस विच calculates rate of flow or velocity of flow. Again, it is an application of Bernoulli's. This is another application of Bernoulli's. Speed of efflux या फिर Torricelli's law. This is also very important. Efflux means outflow. ये क्या बोलता है Torricelli's law? ये बोलता है कि अगर किसी टैंक में, बड़ा सा टैंक है और छोटा स्मॉल ओपनिंग है, सो इससे जो वेलोसिटी निकलेगी, दिस वेलोसिटी वुड बी रादर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग पार्टिकल फ्रॉम द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। मतलब अगर ये हाइट h है, नीचे ये ओपनिंग है, ये हाइट h है, तो यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी दिस विल बी सेम एज √2gh। √2gh आपको मालूम है, इट इज ए वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग पार्टिकल। एक फ्री फॉलिंग पार्टिकल को आप h हाइट से अगर ड्रॉप करोगे तो कितना वेलोसिटी आएगा? √2gh। तो वही चीज है, उसका हमको डेरिवेशन करना है। ओके, क्या करेंगे देखो, वेरी सिंपल सेटअप। ये हमारा टैंक है, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया P0। इस ओपनिंग के बाहर भी एटमॉस्फेयर होगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर P0 होगा, तो P0 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये हमेशा याद रखना, जब आप दो ओपनिंग्स के बीच में बर्नौली अप्लाई कर रहे हो, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमन टू बोथ। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ ऊपर होता है, नीचे से भी मिलता है आपको प्रेशर, तो यहाँ पे भी P0 है। इधर एरिया A1 है, जो टैंक का जो ब्रॉड एरिया है जहाँ पे वाटर स्टोर किया गया है, वो टैंक जो बड़ा सा है उसके ऊपर जो एरिया है वो A1 है, और जो छोटा सा ओपनिंग है उसका एरिया A2 है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि A2 विल बी वेरी लेस देन A1। कहाँ टैंक का पूरा एरिया और कहाँ छोटा सा ओपनिंग, राइट? सो A2 इज वेरी लेस देन A1। अब बर्नौली लगाएंगे हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। किन दोनों पॉइंट्स के बीच में? फ्रॉम एट दिस पॉइंट एंड एट द ओपनिंग आई एम अप्लाइंग बर्नौलीज। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है सरफेस पे? जस्ट P0। दिस इज द प्रेशर हेड, दिस इज द पोटेंशियल हेड ρgh। मैंने इस पॉइंट को अपना रेफरेंस ले लिया। इफ आई टेक दिस पॉइंट एज माई रेफरेंस, सो ρgh वुड बी माई पोटेंशियल हेड। अब यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज सिग्निफिकेंट हियर। यहाँ पे वेलोसिटी ले ली V1, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। ओपनिंग पे देखो यही चीज है, प्रेशर यहाँ पे भी P0 है बिकॉज इट इज ओपनिंग, तो ये यहाँ पे जस्ट जब निकल रहा है बाहर, तब यहाँ पे प्रेशर कितना है P0, प्लस यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं V2, हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये हाइट यहाँ पे है ही नहीं, देखो ये रेफरेंस लेवल है, तो ρgh यहाँ पे नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि इस पॉइंट पे ρgh नहीं है बिकॉज जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अगर यहाँ पे इसको एक रेफरेंस लेते, यहाँ पे एक रेफरेंस लेते, तो ये H1 आता, ये H2 आता, तो ρgh1 माइनस H2 हो के क्या मिलता? ये डिफरेंस ही तो मिलता है हमको एट द एंड ऑफ द डे। तो जिसको मैंने एक साइड पे ρgh लिख दिया है बस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ρgh कैसे आया उस साइड पे, इस साइड पे क्यों नहीं है? एवरीवन क्लियर है ना? चलो, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जहां पे भी बर्नौली लगता है गाइज, इतना याद रखो कि बर्नौली का एप्लीकेशन विदाउट दिस कभी होता नहीं है। यू विल ऑलवेज हैव दिस सिचुएशन, बर्नौली प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दे गो हैंड इन हैंड। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। पुटिंग V1 इन टर्म्स ऑफ V2, तो V1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? A2 V2 बाय A1, तो ये हो जाएगा हाफ रो, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, इस पे देखो, हाफ रो V1 की जगह मैंने लिखा है A2 बाई A1 इंटू V2, सो A2 बाई A1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू इन प्लेस ऑफ V1 प्लस ρgh।
इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, बिकॉज P नॉट दोनों साइड से कैंसिल हो गया। इस लाइन से ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है? किसी को ऐसा जिसको इस लाइन के बाद ये लाइन ना समझ में आ रही हो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, सो नाउ what we will do is both these V2 terms will collect together. So I'll get this V2 square here and take half, ठीक है, इधर कॉमन, and रो V2 square also is taken common, right? तो यहां पे देखो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस A2 by A1 होल स्क्वायर, रो V2 स्क्वायर कॉमन, और यहां पे एक माइनस था जो मैंने अंदर भेजा, और रो GH जो माइनस में आया उसको प्लस कर दिया। ये चाहिए तो मैं करके बता देता हूं आप लोग को अलग से। चलो मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको। यहां पे मैंने क्या किया है डियर, हाफ रो A2 by A1 होल स्क्वायर V2 स्क्वायर minus half row V2 square. I've got this guy here and this will be minus of rho GH. ये आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ उसको इस तरफ लेके आया और रो GH को उधर भेज दिया, तो ये माइनस को इधर एडजस्ट किया तो ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस दिस, रिवर्स हो जाएगा, उधर प्लस रो GH कर रहा हूं, इसको प्लस कर रहा हूं, अब हाफ रो V2 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो ये वाला तो पूरा हो जाएगा 1 और यहां बचेगा माइनस का A2 by A1 होल स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है मैंने, राइट गाइस? कुछ नहीं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, ठीक है, तो इसका मतलब आप 1 माइनस क्या कर रहे हो, A2 बाई A1 का स्क्वायर कर रहे हो। अब A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, सो ये नंबर बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू 1, ठीक है, मतलब जैसे 0.1 अपॉन 1000 और इसका भी स्क्वायर, तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देते हैं इस टर्म को, A2 बाई A1 स्क्वायर, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हुआ, तो हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो GH, रो से रो कैंसिल हुआ, तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रो GH। अब इसका एप्लीकेशन सुन लो, इसका एप्लीकेशन आप देखिए, ये क्लियरली बता रहा है इक्वेशन कि फ्रॉम ए हाइट इफ liquid comes out via a tap, right? liquid स्टोर किया गया वाटर टैंक में हाइट पे, उससे बाहर आ रहा है वाटर, एक छोटा सा टैप है, उससे पानी बाहर आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन द हाइट लाइक दिस, √2, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा वेलोसिटी। आपने नोटिस कभी किया हो अगर, तो जो फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, the people who are living in the first floor they rather get very high velocity in their taps, और जो लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं उनका वेलोसिटी काफी डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइट, मान लो ये यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग्स हो, हर एक फ्लैट के लिए ऐसा ही पाइप जाता है नीचे तक, ठीक है, ये पाइप जो है नीचे जाएगा, हर एक फ्लोर के लिए यहाँ पे ओपनिंग रहेगी। मान लो ये 12 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो पहला 12 फ्लोर का रहेगा, फिर 11 फ्लोर का रहेगा, फिर 10th फ्लोर का रहेगा, राइट? तो सबसे ज्यादा हाइट किसको मिलेगी डियर? तो फर्स्ट फ्लोर का है, तो द वेलोसिटी ऑन द फर्स्ट फ्लोर का इज द हाईएस्ट, ठीक है, इसीलिए। और वन मोर एप्लीकेशन, द स्टोरेज टैंक्स आपने देखा होगा किसी भी एरिया के होते हैं, जैसे हम लोग के पास ये उधर वो पिंपरी चिंच वाले जो पिंपरी का ब्रिज है उसके पास एक बड़ा सा टैंक है, राइट? आपने देखा होगा इतना कॉस्ट लगा के वो एकदम हाइट पे बनाते हैं, पिलर्स पे जाके इतना उसका रनिंग कॉस्ट है, उसको इतने हाइट पे बनाना, फिर वहां पे वाटर पंप करना, स्टोर करने के लिए मोटर चाहिए, वो सब करना। क्यों करते हैं? क्योंकि दे वांट टू इंक्रीज द वेलोसिटी एज इट कम्स आउट फ्रॉम द इनिशियल आउटलेट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जब बहुत हाई होगा देन ओनली इट विल रीच फार प्लेसेस, राइट? दैट्स अ रीजन इट इज मेड विद अ वेरी वेरी heighted pillar.
ठीक है, सो इसको आप समझ जाओ, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या फिर टॉरिसिनीज लॉ। और लॉ क्या है कि वेलोसिटी कमिंग आउट फ्रॉम ए ओपनिंग इज √2 gh is same as a particle falling freely from a height h. ओके, सो अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल गाइस, कुछ नहीं करना है इसमें। अब वाटर टैंक इज कंस्ट्रक्टेड एट टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, जो मैं बता रहा था आपको सिनेरियो, एक वाटर टैंक है कंस्ट्रक्टेड एट टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, विद व्हाट स्पीड वाटर विल कम आउट ऑफ टैप 6 मीटर बिलो। तो मतलब h इज 6 मीटर, एज्यूम स्टेडी फ्लो, ठीक है, वो तो आपको स्टैंडर्ड केस बतानी है। तो आपको क्या करना है, v इक्वल टू √2gh, सो 2 into 9.8 into 6 approximately 11 meter per second. That's it. You can predict the velocity quite easily. Okay, so इस तरीके के numericals you can expect. So we have done speed of efflux and Bernoulli का derivation, applications of Bernoulli, ठीक है। अब उसके बाद viscosity we will start tomorrow. Okay, we'll do couple of questions and then we'll end the session. ये मैंने आपको करा दिया है, एटमाइजर स्प्रेयर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कैसे वर्क करता है, डायनामिक लिफ्ट फॉर द एयरक्राफ्ट मैंने बताया, डायनामिक लिफ्ट क्या होता है, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, यू आर एनकरेज्ड टू रीड इट वाया NCERT, दैट बेस्ट एक्सपीरियंस सिनेरियो। जानने में अच्छा लगता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, व्हाट हैपेंस, राइट, एंड हाउ डज बर्नौली एक्सप्लेन्स, और नॉर्मली ब्लड फ्लो भी कैसे मतलब एक्सप्लेन होता है ओवरऑल बॉडी में यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ओके, इस आई डोंट थिंक आई हैव ए न्यूमेरिकल्स ऑन दिस ईयर, नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं so that we are comfortable with the solving part as well. देखो, this is the NCERT exercise question also. Example 7, page number 401. ठीक है, आप लोग पढ़ो इसको एक बार। वाह, ठीक है, स्प्रे है ये सिलेंड्रिकल, इसमें फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ पे जो ओपनिंग है, कहीं से लिक्विड आ रहा हो, वी आर नॉट कंसर्न कि वहाँ से कहाँ से लिक्विड आ रहा है ये, बट दिस इज कमिंग थ्रू दिस, एंड दूसरे एंड पे 40 फाइन होल्स है, माइनर होल्स, ईच वन हैविंग एरिया दिस, ठीक है। वेलोसिटी एट दिस एंड गिवन एज, देखो बोला है क्लियरली, द लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब विद a speed 0.15 मीटर पर मिनट, so this is 0.15 मीटर पर मिनट। बोल रहा है फाइंड द स्पीड विद विच द लिक्विड इज इजेक्टेड थ्रू द होल्स। अभी 0.15 मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में ये ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर चल रहा है। इस स्पीड को इमेजिन करो क्या होगा ये, 1 मिनट में
ये कितना चल रहा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कितना होता है, यहाँ इतना होगा 15। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, वेरी स्लो, वेरी स्लो। डेफिनेटली टू स्प्रे दिस इज नॉट द डिजायर्ड स्पीड, दिस इज नॉट द डिजायर्ड स्पीड टू स्प्रे। तो अभी आपने क्या किया, आपने फिजिक्स थोड़ी इस्तेमाल करी, यहाँ पे दूसरे एंड पे 40 होल्स ले लिए स्प्रे करने के लिए और उनका एरिया बहुत कम कर दिया 10⁻⁸। ठीक है, पूछा है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। तो जो काम कहते हैं ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हो सकता है, उसके लिए बर्नौली क्यों लगाना। आपको मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कितना होगा इस 10⁻⁴। 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर सेकंड करना है अगर तो इज इक्वल टू A2। वैसे मीटर पर मिनट में भी रख सकते हैं क्योंकि हमारा फिर आंसर भी मीटर पर मिनट में ही आ जाएगा, पर ठीक है लेट्स डू इट मीटर पर सेकंड। सो 0.15 डिवाइड बाय 60 बिकॉज कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकंड एंड देन A2 V2। A2 कितना होगा, देखो A2 में ना हमको 40 होल्स का सबका एरिया लेना पड़ेगा। डू यू गाइस एग्री कि लिक्विड तो सभी से बाहर आएगा ना, तो 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁸। सो दिस विल बी टोटल एरिया विच इज दिस एंड V2 इज फिगर्ड आउट। ठीक है, यहां से आप कर लो कैलकुलेशन, यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, चलो कर लेते हैं इसको। ये हो गया V2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60, ठीक है, इंटू 0.15, ठीक है, और अपॉन आ गया ये पूरा 40 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, सो यहां से एक 0 कट कर लेते हैं अपन, ये 4 1 जा 4 2 जा कर लेते हैं, सब खत्म हो गया। ये हो गया 6 2 जा 12 और 15 हो गया 15, एक मिनट, 12 इंटू 0.15 क्या हो गया, अच्छा सॉरी 60 नीचे आ गया, तो सॉरी राइट गाइस। सो मैं फिर से लिख रहा हूँ V2 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ 0.15 हाफ, और ये आया 60 नीचे एंड 40 इंटू 10⁻⁻। अब सही है ना, अभी ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से हम काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको 100 कर देते हैं। दिस इज 15 4 जा, ये हो गया 4 2 जा, ये हो गया 2 2। सो 0.5 इंटू कितना आया, ये हुआ 10 की पावर -8 -6 और ये हो गया -5 10 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। सो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से जब वेलोसिटी इससे जो बाहर आएगा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, विच इज क्वाइट हाई गाइस, 5 meters in 1 second, right, compared to 15 centimeter in a minute. That's what we do. ठीक है, A1 V1 is equal to A2 V2। चलो अब करेंगे हम एग्जाम्पल 9, पेज 401, एग्जाम्पल 9। आप लोग पढ़ो इसको। अब ये मतलब कहते हैं ना एरोप्लेन डिजाइन चल रही है, एरोप्लेन डिजाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या मेरा एरोप्लेन रेडी है उड़ने के लिए। तो वही चीज सिमुलेट कर रहे हैं एक विंड टनल में, वही एक्सपेरिमेंट है ये।
ठीक है, तो एरोप्लेन का विंग कुछ इस तरीके से है। द फ्लो स्पीड्स ऑन द अपर एंड लोअर सर्फेसेस एट 70 एंड 63। सो यहाँ पे फ्लो स्पीड जो है वो 70 है एंड नीचे वाले में 63 है। ठीक है, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, मतलब इस विंग को कितना लिफ्ट मिल रहा है ऊपर। दिस इज द लिफ्ट विच दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट। फर्स्ट लिफ्ट इफ द एरिया इज 2.5 मीटर, area of the wing is 2.5 meter square, ये दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.3 kg per meter cube. Again we are applying Bernoulli between these 2 points and we ignore this height difference because it is very very less. तो Bernoulli लगाएंगे तो हाइट सेम है, तो Bernoulli क्या लगेगी, P इसको बोलता हूं मैं P1, इसको बोलता हूं P2। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यहाँ प्रेशर ऊपर P1 है, नीचे P2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटा अप्रोक्सीमेशन है, हमने इस हाइट को इग्नोर किया है और एयरक्राफ्ट के सारे प्रॉब्लम में आप इस हाइट को इग्नोर ही करेंगे बिकॉज दिस हाइट इज फेयरली लेस। क्योंकि विंग आपको दिख रहा है मैंने ऐसा बनाया है, बट ये बहुत स्लाइट स्लोप होता है, ऐसा स्लोप इज वेरी लेस, है ना। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर बोर्डिंग ए फ्लाइट, इफ यू आर able to see this, you can see this is narrow, very very it's a gentle slope given to the wing, so height difference is very less. तो P1 प्लस हाफ रो इंटू V1, V1 कितना दिया है 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 इज 63। तो यहां से आ जाएगा P2 माइनस P1, मतलब P2 विल बी हायर ना, ऑब्वियस सी बात है। P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू हाफ रो 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। रो का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1.3। सो विद दिस व्हेन यू प्लग इन द वैल्यूज, हाफ 1.3 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ये आप लोग कैलकुलेट करो गाइस, एंड दिस विल बी कमिंग एज व्हाटएवर। ठीक है, व्हाटएवर जो आ जाएगा ये आप लिखो। हमें चाहिए फोर्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस प्रेशर डिफरेंस, दे वांट द नेट अपलिफ्ट। डू यू गाइस एग्री कि P2 माइनस P1 मतलब जो ऊपर का प्रेशर है, जो नीचे का प्रेशर है, सो दिस इज द नेट प्रेशर अपवर्ड्स बिकॉज P2 इज दिस वे, P1 इज दिस वे, सो P2 माइनस P1 इज द नेट प्रेशर। इसको आप विंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो नेट अपवर्ड फोर्स बोल सकते हैं एयरलिफ्ट, वो हो जाएगा P2 माइनस P1 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, राइट। सो इवन द कैलकुलेशन ऑफ द विंग का एरिया जो हम लोग निकालते हैं, जब हम डिजाइन करते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट, तो विंग का एरिया जो हम डिजाइन करते हैं वो भी इट शुड, बिकॉज दिस शुड गिव यू इनफ अपलिफ्ट। तो लेट्स से आपका चेक इन बैगेज एंड ऑल सब पैसेंजर का बैगेज सब ऐड करके जो वेट आ रहा है उसको अपलिफ्ट करना है, सो यू हैव टू हैव एज मच एरिया ऑफ द विंग्स। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना दिया, ठीक है। और ये एरिया टू सर्टेन एक्सटेंट एडजस्टेबल भी होता है। उसका विंग जो होता है उसमें दो ऐसे फ्लैप्स होते हैं जो अंदर बाहर कर सकते हैं, वो भी ऐसे बढ़ा भी सकते हो एरिया आप। ठीक है, understood? So we'll end the session here today. I'm having a slight bad throat, but जो एजेंडा था मैंने फिनिश किया है आपका। तो अभी आप लोग ना चेक पॉइंट 2 करने के लिए एक्चुअली इक्विप्ड हो, यू आर इक्विप्ड टू डू चेक पॉइंट 2। चेक पॉइंट 3 आप लोग कल की क्लास के बाद कर पाओगे। तो चेक हमारा कल का जो एजेंडा है वो है विस्कोसिटी एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस।
and then the last class on Saturday is kept for surface tension, which is the highest weightage topic of this chapter. ठीक है? Okay? Surface tension is also very very interesting. Lot many liquid phenomena. For example, I don't know whether you guys have ever wondered कि आप जब जो प्लांट्स होते हैं जैसे, ठीक है, प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो अंदर होती हैं, राइट? हम पानी देते हैं किसमें? रूट्स पे। या फिर अगर एक नॉर्मल प्लांट रहेगा जो बाहर रहता है, जो अनमॉनिटर्ड है, राइट, बगीचे में जैसे रहता है या पार्क में, उसकी रूट्स में पानी कहाँ उसको मिलता है? वाटर के सोर्स अंदर होता है। और एक्चुअली वाटर का यूज़ कहाँ होता है? लीव्स पे, राइट? तो वहाँ से लेके वहाँ तक वाटर जाता कैसे? देयर इज नो मोटर देयर टू पंप दिस वाटर लाइक वी हैव। तो वो सरफेस टेंशन से होता है पूरा एक्सप्लेन। ठीक है, there's lot many phenomena explained by surface tension that we'll do on Saturday. कल का हमारा एजेंडा है विस्कोसिटी का। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप द रिकॉर्डिंग प्लीज। नहीं स्टॉप कर दो।